Welcome to Let's Make Learning English Easy channel. In today's video, we are going to learn daily use English sentences with any meaning. So without any further ado, let's start the video. Don't make excuses. Don't make excuses. बहाने मत बनाओ. बहाने मत बनाओ. Don't stretch the matter further. Don't stretch the matter further. अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत. अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत. Don't act so pricey. Don't act so pricey. ज़्यादा भाव मत खाओ. ज़्यादा भाव मत खाओ. It's no use going there. It's no use going there. वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं. वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. मुझे नींद आ रही है. मुझे नींद आ रही है. Don't abuse him or don't abuse her. उसे गाली मत दो. उसे गाली मत दो. Please don't embarrass me. Please don't embarrass me. मुझे शर्मिंदा मत कीजिए. मुझे शर्मिंदा मत कीजिए. It's all yours. It's all yours. इसे अपनी ही चीज़ समझे. इसे अपनी ही चीज़ समझे. Let me take a shower. Let me take a shower. मुझे नहाने दो. मुझे नहाने दो. It's no use asking him. It's no use asking him. उसे या उन्हें पूछने का कोई फ़ायदा नहीं. उन्हें पूछने का कोई फ़ायदा नहीं. Come with us. Come with us. हमारे साथ आओ. हमारे साथ आओ. You cannot escape from this. You cannot escape from this. आप इससे बच नहीं सकते. आप इससे बच नहीं सकते. What did you say? What did you say? क्या कहा आपने या क्या कहा तुमने. Use your brain. Use your brain. अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. The cake will take 15 minutes to prepare. The cake will take 15 minutes to prepare. केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे. केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे. The water is running over. Turn off the tap. The water is running over. Turn off the tap. पानी भरकर बह रहा है. नल बंद करो. पानी भरकर बह रहा है. नल बंद करो. Heat up the tea. Heat up the tea. चाय गर्म कर दो. चाय गर्म कर दो. Did I get you right? Did I get you right? क्या मैंने आपको सही समझा? क्या मैंने आपको सही समझा? She is quiet. She is quiet. वह शांत है. वह शांत है. They are friends. They are friends. वे दोस्त हैं. वे दोस्त हैं. This is easy. This is easy. यह आसान है. यह आसान है. I need help. I need help. मुझे मदद चाहिए. मुझे मदद चाहिए. He is lucky. He is lucky. वह भाग्यशाली है. वह भाग्यशाली है. She is quick. She is quick. वह तेज है. वह तेज है. We are busy. We are busy. हम व्यस्त हैं. हम व्यस्त हैं.
It is warm. It is warm. गर्मी हो रही है. गर्मी हो रही है. I am scared. I am scared. मैं डर गया हूँ या मैं डरा हुआ हूँ. She is brave. She is brave. वह बहादुर है. वह बहादुर है. He is brave के लिए भी हम यही यूज़ करेंगे. वह बहादुर है. They are laughing. They are laughing. वे हंस रहे हैं. वे हंस रहे हैं. This is heavy. This is heavy. यह भारी है. यह भारी है. I feel sick. I feel sick. मुझे बीमार लग रहा है. मुझे बीमार लग रहा है. He is clever. He is clever. वह चालाक है. वह चालाक है. She is happy. She is happy. वह खुश है. वह खुश है. We are tired. We are tired. हम थके हुए हैं. हम थके हुए हैं. It is windy. It is windy. हवा चल रही है. हवा चल रही है. I am excited. I am excited. मैं उत्साहित हूँ. मैं उत्साहित हूँ. She is singing. She is singing. वह गा रही है. वह गा रही है. उसी तरह से he is singing. वह गा रहा है. He is singing. वह गा रहा है. They are running. They are running. वे दौड़ रहे हैं. वे दौड़ रहे हैं. वह जानता है उसे. वह जानता है उसे. He knows him. He knows him. अगर रहता वह जानती है उसे तो उसके लिए हम कहते She knows him. She knows him. मैं बाजार जा रहा था. मैं बाजार जा रहा था. I was going to market. I was going to market. वह इसे खरीद सकता है. वह इसे खरीद सकता है. He can buy it. He can buy it. वह इसे खरीद सकती है. She can buy it. वह इसे खरीद सकती है. She can buy it. हमें लेट हो रही है. हमें लेट हो रही है. We are getting late. We are getting late. वह बहुत बोलती है. वह बहुत बोलती है. She talks a lot. She talks a lot. वह बहुत बोलता है. वह बहुत बोलता है. He talks a lot. He talks a lot. रोहन बहुत बोलता है. रोहन talks a lot. शीला बहुत बोलती है. शीला talks a lot. A quick revision. वह जानता है उसे. He knows him. मैं बाजार जा रहा था. I was going to market. वह इसे खरीद सकता है. He can buy it. हमें लेट हो रही है. We are getting late. वह बहुत बोलती है. She talks a lot. मेरे पास कार नहीं है. मेरे पास कार नहीं है. I don't have a car. I don't have a car. अभी यहाँ पर अगर रहता हमारे पास कार नहीं है. हमारे पास कार नहीं है. We don't have a car. We don't have a car. मेरे के लिए हम I यूज़ करेंगे और हमारे के लिए हम we यूज़ करेंगे. मैं नहीं जा सका. मैं नहीं जा सका. I couldn't go. I couldn't go. उसी तरह से वह नहीं जा सका के लिए हम कहेंगे he couldn't go. वह नहीं जा सकी के लिए she couldn't go. हम नहीं जा सके के लिए we couldn't go. ठीक है. मैं नहीं जा सका. I couldn't go. वह नहीं जा सका.
ही कुडेंट गो, वह नहीं जा सकी। सी कुडेंट गो, हम नहीं जा सके। वी कुडेंट गो। ठीक है। क्या उसका तबीयत खराब है? क्या उसका तबीयत खराब है? इज ही सिक? इज ही सिक? क्या उसकी तबीयत खराब है? ठीक है। इज सी सिक? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दिस। आई कांट टॉलरेट दिस। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही कांट टॉलरेट दिस। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सी कांट टॉलरेट दिस। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी कांट टॉलरेट दिस। अ क्विक रिवीजन। मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार। मैं नहीं जा सका। आई कुडेंट गो। क्या उसका तबीयत खराब है? इज ही सिक? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कान टॉलरेट दिस। बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। इट्स एनफ, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। इट्स एनफ, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। It's enough. Now stop laughing. It's enough. Now stop laughing. बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगी। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगी। It's enough. Now I will not convince her. It's enough. Now I will not convince her. बहुत हो गया, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। बहुत हो गया, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। इट्स इनफ, नाउ आई विल नॉट स्टडी। इट्स इनफ, नाउ आई विल नॉट स्टडी। बहुत हो गया, अब अपनी बकवास बंद करो। बहुत हो गया, अब अपनी बकवास बंद करो। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप योर बुलशिट। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप योर बुलशिट। ये समझना ज़रूरी है कि बहुत हो गया के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इट्स इनफ। आप देखेंगे फर्स्ट जो सेंटेंस में स्टार्टिंग हो रहा है वो बहुत हो गया से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और बहुत हो गया को इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स इनफ। चलिए अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। इट्स इनफ, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगी। इट्स इनफ, नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर। बहुत हो गया, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। इट्स इनफ, नाउ आई विल नॉट स्टडी। बहुत हो गया, अब अपनी बकवास बंद करो। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप योर बुलशिट। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। As of now, I am cooking food. As of now, I am cooking food. फिलहाल मैं खाना बना रहा हूँ। फिलहाल मैं खाना बना रहा हूँ के लिए होगा As of now, I am cooking food. सेम रहेगा, ठीक है। As of now, I am cooking food. But अगर हम कहेंगे फिलहाल हम खाना बना रहे हैं, फिलहाल हम खाना बना रहे हैं, यहाँ पर मैं की जगह हम यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी एज ऑफ नाउ वी आर कुकिंग फूड। एज ऑफ नाउ वी आर कुकिंग फूड। यहाँ पर आई एम की जगह हम यूज़ करेंगे वी आर, हम के लिए। अगर मैं बोलूँगी तो उसके लिए आई एम यूज़ किया जाएगा, और अगर हम कहेंगे तो उसके लिए वी आर यूज़ किया जाएगा। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ रहा तो उसके लिए भी हम एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल ही यूज़ करेंगे। बट अगर फिर से फिलहाल हम स्कूल जा रहे हैं रहेगा तो उसी तरह से आई एम की जगह हम यूज़ कर लेंगे वी आर। एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू स्कूल। एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि मैं के लिए आई यूज़ किया जाएगा और हम के लिए वी का यूज़ किया जाएगा। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ।
फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ की इंग्लिश हो जाएगी एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। उसी तरह से फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ के लिए भी यूज़ किया जाएगा एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। लेकिन फिलहाल हम खाना खा रहे हैं के लिए यूज़ हो जाएगा एज ऑफ नाउ वी आर ईटिंग फूड। फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। फिलहाल हम टीवी देख रहे हैं एज ऑफ नाउ वी आर वॉचिंग टीवी। फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं के लिए होगा एज ऑफ नाउ वी आर स्टडिंग। तो इससे आप समझ लीजिएगा कि फिलहाल के लिए यूज़ किया जाता है एज ऑफ नाउ। हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फिलहाल के लिए हम यूज़ करेंगे एज ऑफ नाउ। चलिए चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। तुम्हें किस बात की कमी है? तुम्हें किस बात की कमी है? What do you lack? What do you lack? मेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। मेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। My dream will not remain incomplete. My dream will not remain incomplete. उसकी कमी पूरी कौन करेगा? उसकी कमी पूरी कौन करेगा? Who will find his void? Who will find his void? उसने सारी जिम्मेदारी ले रखी है। उसने सारी जिम्मेदारी ले रखी है। He has taken all the responsibilities. He has taken all the responsibility. तुम हर बार उसे क्यों डराते हो? तुम हर बार उसे क्यों डराते हो? Why do you scare him every time? Why do you scare him every time? मुझे हिचकी आ रही है। मुझे हिचकी आ रही है। I am getting hiccups. I am getting hiccups. हमें हिचकी आ रही है के लिए हम यूज़ करेंगे we are getting hiccups. We are getting hiccups. हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं मिस्टेक करना है कि मुझे के लिए या मैं के लिए I am का यूज़ हो रहा है, लेकिन हम के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे we are. We are. मुझे हिचकी आ रही है के लिए हम कहेंगे I am getting hiccups. हमें हिचकी आ रही है के लिए हम यूज़ करेंगे we are getting hiccups. हिचकी के लिए इंग्लिश वर्ड होता है hiccups. अगली बार से जब भी आपको हिचकी आए तो आप hiccups कह सकते हैं। कुल मिलाकर कितना हुआ? कुल मिलाकर कितना हुआ? How much altogether? How much altogether? दूर हो जाओ मेरे नज़रों के सामने से। दूर हो जाओ मेरे नज़रों के सामने से। Get out of my sight. Get out of my sight. यहाँ पर नज़रों के सामने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? My sight. ठीक है, मेरे नज़रों के सामने से के लिए यूज़ कर रहे हैं my sight. हमने बहुत मज़े किए। हमने बहुत मज़े किए। We had a lot of fun. We had a lot of fun. मैंने बहुत मज़े किए। मैंने बहुत मज़े किए। I had a lot of fun. I had a lot of fun. हमने के लिए जब एक से ज़्यादा रहेगा तो we यूज़ करते हैं। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे कभी भी गलती नहीं होगी। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? How do you feel now? How do you feel now? समझ गए? अब चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, लेकिन छोटी सी पॉइंट हमेशा याद रखती है कि हिकअप्स हिचकी के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए रिवाइज करते हैं इसे। मुझे हिचकी आ रही है। I am getting hiccups. कुल मिलाकर कितना हुआ? How much altogether? दूर हो जाओ मेरे नज़रों के सामने से। Get out of my sight. हमने बहुत मज़े किए। We had a lot of fun. अब कैसा लग रहा है? How do you feel now? Hope you all like this video.
If this video was helpful to you, please don't forget to like, share and subscribe. Let's Make Learning English Easy channel. A quick tips that I want to give you is that please save this video in your playlist and watch it every day. Not only watching, you need to practice with me, okay? Whatever the sentences I am teaching you, please try to incorporate these sentences in your day-to-day life. You will find that learning English will become very easy. In my other video and to all my students, I always suggest that practice makes a man perfect. So learning English or any other language, you need to do practice, because without practicing, you can't learn anything, because practice is very important. If you don't have any other person to practice with, or you are very shy to practice with other person, then you can practice with your own self, or you can practice with me by watching my videos, because in that way there will be no one who will be judging you, or there will be no one who will be laughing at you. You can English at your own comfort. It's very important to be comfortable in doing anything. Okay, hope these tips will be useful to you. Please don't forget to like and share and subscribe. Let's Make Learning English Easy channel. Thanks for watching once again.